Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. We are going to start the first lecture of mathematics, chapter number 3. Please mute your microphones. Please. Today we are going to study the first lecture of this new academic year 2021, and today we are going to start the first lesson of this week, and the chapter that is about the chapter number 3, Introduction to Algebra. Please quiet all. Or your mics, please. So please mute your mic. Okay. As I told you that we are going to study today chapter number 3, which is regarding the algebra, and in which we have to study that which method we use to write simple algebraic expressions. The first topic that we study that is using letters for unknown quantities. Now, what are unknown quantities, or what are some simple algebraic expressions? First of all, we have to study it. These are the learning objectives that you will study. That after studying this chapter or this lecture, we will be able to make simple algebraic expressions and some commonly problems that we face while making these expressions. Now, just answer me this. Please quiet all. बेटा अपने पेरेंट्स से कहें वो खामोश हो जाएं, आप भी खामोश हो जाएं. Okay, beta. On your screen, you have seen 3 questions. How we will write add 3 in y? That means add 3 in y means add 3 in y, that y plus 3. And if I say you just write a statement 4 subtract from y, we will write y minus 4. Y minus 4, because the meaning of subtraction is minus. And what should be added in 6 to make 10? बताइए क्या आंसर होगा बेटा? अगर 6 को मैंने 10 बनाना हो, definitely we will add 4 in 6 to make it 10. So these are the answers. So now, what is introduction to algebra? The first chapter. This chapter we will study chapter number 3, that how we will write simple algebraic expressions. Before going to tackle the complex problems, we have to need that how to translate a simple problem into algebra. So to understand algebra, you must know the basic, some basic things. That algebra basically is the branch of maths in which unknowns are involved, something which we don't know, or something which have different values, or may have different values, just like what should be added in 5 to 10, definitely that is 5. So just we have to understand what is going to study, or what we have to translate, or how we have to translate. First of all, these are the rules we have to understand before going to make algebraic statements. First rule, that we use letters x, y, and z for writing unknown quantities, because algebra basically is an algebra of unknowns, or that unknowns are sometimes called variables. And as you know, we have lots of alphabets from A, B, C to Z, in which we are normally x, y, and z. These are used as variables.
So whenever we write a statement or whenever we have to convert a statement into algebraic expression, we should put here some points in our mind that how we will have to proceed it. For example, if you are 2 years older, if I just ask you that you are 2 years older and your brother older than your brother and the age of your brother is unknown. Let's suppose अगर आप अपने मैं आपसे पूछूं या अगर आप किससे पूछें कि जी अगर आपकी एज 2 years है और आपका भाई जो है और you are 2 years older than your brother and the age of your brother you don't know, then how we will write the algebraic statement for that? Because age of your brother is unknown, so we will use variable in place of the unknowns. Let's suppose x. Let's suppose x is the age of your brother, and you are older, 2 years older from your brother. So we will write in algebraic expression x plus 2. X means the unknown age of your brother. जो भी आपके भाई की अननोन एज होगी बेटा वो आप x से प्लेस कर देंगे, उसमें आप 2 को ऐड कर देंगे तो आपकी चीज बन जाएगी. इसी तरह similarly if you are 2 years younger than your brother, अगर आप अपने भाई से 2 साल छोटे हो, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, अगर आप अपने भाई अपने पेरेंट्स से कहें प्लीज वो खामोश हो जाए. तो बेटा on point 3 similarly if you are 2 years older or than your brother you will write the statement x plus 2, and if you are 2 years younger than your brother so you will write x minus 2 because age of your brother is x. If you are older than 2 you will add 2, and if you are younger than 2 then you will write minus 2. Normally we make these statements while using mathematical operators plus, minus, multiply or divide to write algebraic statements. So we just have to concentrate on the statement, that what the statement is, and after that we will decide what we have to write. So before writing the statement you just know what is given in the data and what we have to suppose. So that we suppose is the variable, and the other values that are given that will be used in mathematical operators. So whenever we write algebraic statements, some words will be used. Look at this addition. Whenever we have to use addition symbol in our algebraic expression, addition symbol in our algebraic expression, that is the statement or the number that or the word used in that statement, it might be sum, add, combine, increase, larger, plus, more. These all words are used in the form of addition. That means we have to use a positive sign or plus sign between the statements. Just like if I write the sum of 4 and 5, sum mean plus, sum mean plus. So this is the statement is sum of 4 and 5. So definitely then we will add 4 and 5. And if I write more than 7, more than is also used for addition. So we will add the same sign 3 plus 7 or 7 plus 3. Combine 6 and 10. Combine is also used in the term of addition. Combine 6 and 10, that means you have to join them. So again we added 6 and 10. If it says increase by 10, increase by 10, so we know in which value we have to increase. In which value we have to. बस इस पेज को ऊपर नीचे ये फिर पेज चेंज होता रहेगा, ये उनकी वॉइस आ रही है. अच्छा देखिए बेटा, प्लीज बेटा अपने पेरेंट्स से कहें वो खामोश हो जाए, जब बोलने में मुश्किल हो रही है. अच्छा अब देखो बेटा, इंक्रीज बाय 8. अब इंक्रीज बाय 8 में देखें हमने इंक्रीज बाय 8 किस में ऐड करना है, इसका मतलब यहाँ अननोन इन्वॉल्व है, तो हम लिखेंगे x plus 8, अननोन वैल्यू में 8 ऐड करना है.
अच्छा, अब मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एडिशन के लिए क्या वर्ड यूज होंगे बेटा स्टेटमेंट में? सम, ऐड, कंबाइन, इंक्रीज, लार्जर, प्लस, मोर, and so and so. So the sum of 4 and 5, that means we have to add 4 and 5. 3 more than 7, that means we have to add 3 and 7. So 7 plus 3. Combine 6 and 7 is means that we are going to join them. Again we write 6 plus 10. Increase by 8, that means we have to add 8 in something. So that something is variable. So answer will be x plus 8. Similarly, in our statement, subtraction is also used. And when we have to use this minus sign, these words will be used: difference, subtract, minus. सर वो कौन सा काम है? बेटे आप सिर्फ पढ़ोगे फिर आपको काम एंड में पता चल जाएगा। काम आपको एंड में बेटा बता दूंगा, आप सिर्फ इसको समझो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। Difference, the different words used for subtraction will be difference, subtract, minus, favor, less, take away, or decrease. Whenever these words will be used in your statement, we have to make the subtractions. Like if I say you subtract 2 from 9, that means हमने 9 में से 2 को माइनस करना है. और if I write take away 278, अब unknown इसमें अब 278 हमने किसमें से well subtract करना है. So that word will be used the unknown, and I told you earlier that for unknowns we use normally x, y, and z. So take away 278, that means from a variable, and we will write the expression x minus 278. Now this next statement, 1 fewer than 6. अब 1 fewer than 6 से मुराद है कि 6 में से हमने 1 कम करना है, तो we will do 6 minus 1. Decrease by 4, again जो हमने 4 माइनस करना है वो डिक्रीज कहाँ से डिक्रीज करना है, we don't know, so we use variable that we have to subtract 4 from any unknown variable that is called x. So अभी हम उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं. बोलना चाहते हैं ऐसे कुछ? एडिशन की समझ नहीं आई थी. बेटा आपके पास इस वक्त जो सामने स्क्रीन है इस पे कंसंट्रेट करो, आपको इससे ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी. ये सामने स्क्रीन है, इसको ज्यादा कंसंट्रेट करो. देखिए बेटा इस स्टेटमेंट को देखो, इस एग्जांपल को देखो, ये आपकी बुक के ऊपर भी है, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा. अगर ये समझ आएगी तो दोबारा बता दे. अच्छा बेटा आप ये जो पेज आपके सामने है ना, इस पे थोड़ा कंसंट्रेट करो जरा. लेट्स सपोज वो आपको वो समझ आ जाएगा. पहले इसको देखिए आप, ये क्या कह रहा है. कहता है कि इफ देयर आर x colored balls in a box, हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें हमारे पास कुछ कलर जो है वो बॉल्स है. एक बॉक्स है उसमें कुछ कलर बॉल्स हैं. अब some balls are added or removed from the box. अब हम लोगों ने करना ये है बेटा कि हमने इनके एक्सप्रेशन बनाने हैं. लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें x अननोन जो है वो कलर बॉल्स है. तो नीचे टेबल में देखिए हमने क्या लिखा है, एट फर्स्ट. हमारे पास बैग में कितने कलर बॉक्स हैं, बॉक्स के अंदर x. ये स्टेटमेंट में आप देख रहे हो ना, देयर आर x कलर बॉल्स इन ए बॉक्स. तो एट फर्स्ट हमारे पास बॉल जो है वो जो बॉक्स है उसमें कितने कलर बॉक्स है बेटा, x है. अब अगर उसमें मैं एक बॉल ऐड कर देता हूं तो मैं उसको स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा बताइए, x प्लस 1, क्योंकि x बॉल्स तो ऑलरेडी बॉक्स हैं. 1 ऐड करूंगा तो कितने हो जाएंगे, x प्लस 1. ऐसा ही है ना, ये समझ आई आपको, x प्लस 1. अच्छा अगर उसी में से मैं सपोज आपसे कहूं कि रिमूव 1 बॉल, तो आप क्या करोगे, x माइनस 1. ऊपर बस 5 लिखा है. आपने मेन फोकस x पे ही करना है बेटा, और जो भी स्टेटमेंट बनानी है उसी x से ही बनानी है. अगर मैं आपसे कहूँ ये सारी सपोजिशंस हैं. अगर मैं कहूँ कि मैं ऐड 1 बॉल, यू विल राइट x प्लस 1 बिकॉज वी हैव x balls in our box. If I say you just remove 1 ball, you will write x minus 1. If I say you add 2 balls, you will write x plus 2 because you have x balls in your box. If I say you
that you just add 5 balls, then you will write x plus 5. If I say you remove 3 balls, you will write x minus 3. If I say you remove 8 balls, you will write x minus 8. ये चीज आपको समझ आ रही है? अगर हमारे पास x बॉक्सेस है, मैं आपसे कहता हूँ उसमें ऐड करो तो आप प्लस करोगी, अगर मैं कहता हूँ रिमूव करो तो आप माइनस करोगी. ऐसा ये चीज समझ आ गई आपको? यस. अच्छा, एक और देखिए इसके बाद. अच्छा, ये छोटी सी आपके लिए, अभी तो मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में आपसे बात की है. ये आपके सामने 2 वीडियोस नजर आ रही हैं, मैं उसको प्ले करने जा रहा हूँ. आपके साथ पास जो ये असाइनमेंट आएगी उसमें भी ये प्ले हो जाएंगी. तो इसको आपने देखना है, इससे भी आपको कुछ बेहतर तौर पर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में. मैं अभी आपको थोड़ा सा और प्लस और माइनस के बारे में बताने जा रहा हूँ. ये बेटा, ये वीडियो आपने बाद में खुद से देखनी है. अभी मैं इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ और अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर रहा हूँ. ये बेटा कुछ रूल्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं. जब आपने छोटा सा होमवर्क अपनी कॉपी पे करना है तो ये रूल्स जो आपको असाइनमेंट्स में आएंगे ये आपने पढ़ने हैं. ठीक है? अच्छा, अब ये देखो, चलो अब ये देखो, ये क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं. जल्दी से मुझे बताएं वन बाय वन बताएं बेटा कि व्हाट विल बी द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इफ से यू ऐड 5 to a. आप क्या लिखेंगी? ज़ैनब आप बताइए, ज़ैनब रिजवान आप बताइए बेटा, इफ आई से यू ऐड 5 to a, व्हाट विल बी द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? 5 plus a. शाबाश. नेक्स्ट वन बेटा, इफ आई से यू ऐड b to 1. ईमान आप बताइए बेटा. ना b plus 1. You will write b plus 1. Nabiha, next आप बताइए आप. If I say you that write 4 more than 7 in expression, क्या लिखेंगी आप? आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, मुझे तो आपकी आवाज आ रही है. आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है सर. अच्छा, आप देखो बेटे अपनी स्क्रीन पे देखो. थर्ड क्वेश्चन है 4 more than 7. अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको एक्सप्रेशन में लिखिए बेटा तो कैसे लिखेंगे? ईमान आप बताइए. ईमान आप बताइए. If I say you that write 4 more than 7, क्या आंसर होगा बेटा? हाँ, पूछना नहीं. ज़ैनब आप बताइए बेटा, आपकी पिक्चर आ रही है. 4 minus 6. Now 4 more than 7, that means we have to add it. More but means add. 4 plus c. Shabash. Now d more than 8. Next one, anyone answer it? d more than 8. Yes. Shabash. Very good. Shabash. Okay beta, anyone else? Subtract 3 from e. 3e. No beta, 3 from e minus 3. Exactly, e minus 3 is the correct answer. Okay, if I the next question is subtract f from 7. F minus 7. 7 minus f. Shabash beta, shabash. 6 less than g. 6 minus g minus 6. Not 6 less than 6 g. minus g. No beta, g minus, no, g minus 6. g minus 6. Six less than g. हमने g से 6 को कम करना है बेटे. g minus 6. Okay, now next one. h less than 2. h less than 2. बेटा बोलो कोई और. H minus 8. H minus 2. No, h less than 2. 2 से h less है. h less कर रहे हैं आपने 2 में से. नहीं बेटा, 2 minus h. h less करने हैं हमने बेटा, ऐड नहीं करने. h less than 2. No. 2 minus इस्लाम बेटा. 2 minus h. जी बिल्कुल शाबाश. जी वालेकुम सलाम बेटे.
जी मैं आपको मालूम, मैं भी क्लास अटेंड कर रही हूँ। जी जी क्या बेटा, शाबाश। अच्छा बेटा, हम लोग अभी इसके बाद नई स्लाइड पे जा रहे हैं, ओके जिसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सीखेंगे। ठीक है बेटा, जी प्लस और माइनस आपको समझ आ गया? जी ठीक अच्छा, है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन भी बहुत इजी है, देखिएगा उसमें। जी हाँ सर। जी बेटा, सर जी बोलो बेटा, मैं सुन रहा हूँ। सर जो आपने अभी ये पीछे दिखाया था असाइनमेंट का, ये हमने कॉपी पे करना है सेम टू सेम जी या बेटा, बुक वाला? ये बेटा कॉपी पे, आप अगर तो टेबल बुक पे जो बना हुआ है बुक में करेंगे, और जो कॉपी पे करना है उसके कॉपी में ना, जब अभी आपको ये अपलोड हो जाएंगी गूगल क्लास में, ये असाइनमेंट सारी जो मैं आपको ये स्लाइड्स दिखा रहा हूँ ना सारी, ये अपलोड हो जाएंगी। उसमें उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि आपने ये काम किस तरह से कॉपी पे कौन सा करना है और वर्कबुक पे कौन सा करना है। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब ये जो है मल्टी टाइम हमारे पास काम है, इसको देखिएगा। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए देखिएगा जरा। मल्टीप्लिकेशन जब भी हम लोगों ने स्टेटमेंट यूज करना होगी बेटा, जो वर्ड यूज किए जाएंगे वो ये होंगे: टाइम्स, मल्टीप्लाई, ट्वाइस, ट्रिपल, क्वाड्रपल एंड प्रोडक्ट। और डिवीजन के लिए डिवाइड, क्वोशिएंट, हाफ, थर्ड, फोर्थ एंड स्प्लिट। हम बाद में थोड़ा सा बाद में बात करते हैं, पहले हम सिंपल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। लेट्स सपोज ये बेटा, ये एग्जांपल जो है आपकी बुक के ऊपर है, अगर पेज टर्न करेंगे आपको एग्जांपल नजर आएगी कि लेट वी हैव 4 ग्लासेस इन ईच वी हैव PML। आपको नजर आई है बुक पे एग्जांपल? को टर्न करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का पेज आएगा, उसमें एग्जांपल आपको नजर आएगी। सर 4th क्लास में कौन करा रहा है? पता नहीं बेटा, पता नहीं बेटा। अच्छा ये देखें इस क्वेश्चन में। अच्छा बेटा आप देखो, स्टेटमेंट है हमारे पास यहाँ, इफ PML juices इन ईच ग्लास। हमारे पास 4 ग्लासेस हैं, हर ग्लास में PML जो है वो जूस है, और इफ वी हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ जूस in further different glasses, that how how much quantity of juice will be in 3 glass or 2 glass or something, we will write like, अब look at this example। अगर बेटा हम लोगों ने फाइंड करना है अमाउंट ऑफ जूस इन 2 ग्लासेस, तो देखो एक ग्लास के अंदर तो PML है, तो 2 ग्लासेस के अंदर कितने होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय P। और अगर हमने 3 ग्लासेस में देखना बेटा, तो हम क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय P। अगर हमने 4 ग्लासेस में देखना है तो हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय P। जितने ग्लासेस होंगे बेटा उसको हमने मल्टीप्लाई करते जाना है, बिकॉज ग्लास में P जो है हमारे पास ml जूस के हैं। If we have want to find the amount of juice in 2 glasses, we will multiply this PML by 2, similarly with 3 and similarly with 4. And whenever we have to divide, this is also your book example, that is for division। ये आपको टेबल दिखाया गया बेटा, इसमें इसके 3 पार्ट्स दिखाए गए हैं, जिसको डॉटेड लाइन से हमने शो किया हुआ है। और कहता है जस्ट लुक एट टू फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। ये हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, तो अगर मैंने किसी एक पार्ट की लेंथ निकाली है बेटा, तो मैं क्या करूंगा? इस 1 पार्ट को टोटल पार्ट्स पे डिवाइड कर दूंगा। टोटल अगर हमने देखें ऊपर एग्जांपल में शो किया गया है, टोटल लेंथ इसकी 8 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर है। तो इसके 1/3 पार्ट की पार्ट्स हमने बनाए हैं, तो 1/3 पार्ट की जो स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी? देखिएगा, कहता है टू फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पार्ट वी डिवाइड द लेंथ ऑफ द रिबन बाय द नंबर ऑफ पार्ट्स, that is r divided by 3. So the length of each part will be r over 3, because we have 3 parts. If we have 4 parts, then we will write r divided by 4. But because we have here 3 parts, so we will write r divided by 3. Look at some other examples. वीडियोस मैंने आपसे कहा पहले भी कि आपने खुद अपने इसको प्ले करना है अपने मोबाइल फोन पे या कंप्यूटर पे, इस आइकन पे क्लिक करना है तो वीडियो आपकी प्ले हो जाएगी।
अच्छा अब ये देखिएगा थोड़ा सा एडिशन और इसके लिए मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। मल्टीप्लाई a बाय 7, जल्दी से बताएं मल्टीप्लाई a बाय 7 बेटा भैया कैसे लिखेंगे? भैया बोलो बेटे। मल्टीप्लाई a बाय 7 हम कैसे लिखेंगे इसका एक्सप्रेशन? A over 7. a over 7 नहीं बेटा, a मल्टीप्लाई बाय 7, a आगे मल्टीप्लिकेशन साइन, a मल्टीप्लाई का साइन फिर 7, शाबाश। मल्टीप्लाई 3 बाय b, b multiply by 3, शाबाश। नेक्स्ट वन g ग्रुप्स ऑफ c, अब हमने ये कंबाइन करना है, g ग्रुप्स बनाने हैं c के, g 9 ग्रुप्स ऑफ c, 9 मल्टीप्लाई बाय c। इसी तरह से 5 टाइम्स ऑफ d क्या होगा बेटा? 5d, शाबाश, d multiply by 5, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा ये मुझे बताओ डिवाइड a बाय 2, ये क्या कौन बताया? a over 2, a divided by 2, शाबाश, वेरी गुड। डिवाइड 5b बाय 7 कैसे लिखेंगे? 5 divided 7. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा देखें बेटा, अगर देखिएगा डिवाइड c इनटू 5 पार्ट्स। जी नबिया आप बताइए, आपकी आवाज बेटा सामने आ रही है पास स्क्रीन में लेकिन नहीं है बाकी। डिवाइड c इनटू 5 इक्वल पार्ट्स कैसे लिखेंगे बेटा? जैनब आप बताइए, जैनब नदीम। डिवाइड 5b बाय 7 क्या लिखोगी बेटे? आप लिखोगी 5b, फिर डिवाइड का साइन डालोगी और नीचे क्या लिखोगी? 7। क्या लिखोगी नीचे बेटा? 5b, फिर नीचे डिवाइड का साइन और नीचे 7। अच्छा वरीशा आप बताइए बेटा, नेक्स्ट पार्ट है डिवाइड c इनटू 5 इक्वल पार्ट्स कैसे लिखेंगे? उज़मा रुबाब आप बताइए बेटा। divided by 5. उज़मा बेटा अपना माइक अनम्यूट करें, पहले अपना माइक अनम्यूट करें फिर आपकी आवाज आएगी। उज़मा बेटा अपने माइक ऑन का अनम्यूट करें। बेटा अकील यूनुस के नाम से कौन बैठा हुआ है? नहीं सर, ये बेटा आप मुझे बेटा आप बताओ, मैं स्टेटमेंट कैसे लिखूंगा? डिवाइड c इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, c डिवाइडेड बाय 7 क्या लिखूंगा मैं यहाँ? c और डिवाइड का साइन बाय 7, ठीक है। अब वरीशा आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर आ रही है। अच्छा चलो वरीशा जल्दी से मुझे लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। डिवाइड d प्लस 1 इनटू 9 इक्वल पार्ट्स। d plus 1 divided by 9, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। अच्छा अब आपको अभी बेटा ये अपलोड हो जाएंगी आपके पास, अभी 2-1 मिनट मेरे पास हैं। अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने वीडियोस देखनी है जो इस पावर पॉइंट में मैंने आपको 7 स्लाइड्स शेयर की हैं। नेक्स्ट मीटिंग में हम फिर पहले फर्स्ट 10 मिनट्स में इन्हीं स्लाइड्स को शेयर जो है वो डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास पे चलेंगे। इसके साथ कुछ और एग्जांपल्स भी आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह, और गूगल क्लास में शेयर हो जाएंगी। तो इन तीनों स्लाइड्स को आपने अच्छी तरह से देखना है, जो वीडियोस मैंने इसमें ऐड की हैं वो आपने अच्छी तरह से देखनी है, ठीक है बेटा। अगर और कोई क्वेश्चन है तो बताइए, वरना ये मीटिंग जो है वो हमारी एंड होने वाली है। जी अगर आप वक्त मिलेंगे, क्या करिए बेटा? वर्क मिलेंगे? हमें होमवर्क मिलने हैं जैसे डाइस पे हमें मिलते थे। मैंने आपको बताया अभी जो हम पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन मैंने आपको आपके ग्रुप में अपलोड करूंगा ना, उसके अंदर यही जो 2 टेबल आज हमने किए हैं ना, यही आपने अपनी कॉपी पे बस सॉल्व करने हैं, उसमें लिखा हुआ है। और फिर आप उसमें ना जो सेकंड लास्ट स्लाइड होगी, थर्ड लास्ट स्लाइड होगी, उसमें आपको उसमें ये बताया गया है कि आप लोगों ने अपनी कॉपी कैसे मेंटेन करनी है, ठीक है। और सिर्फ जो आपकी जितनी भी स्लाइड है उसके आखिर में होम असाइनमेंट की स्लाइड होगी, उस होम असाइनमेंट की स्लाइड पर जो भी होमवर्क लिखा हुआ है सिर्फ वो अपनी कॉपी पे करना, ठीक है। उसमें इंस्ट्रक्शन लिखी गई है
उसमें लिखी गई है कि अगर आपने क्लास वर्क में करना है, कॉपी पे करना है तो आप कॉपी पे करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन बुक पे करने वाला है तो वो आप बुक पे करेंगे, ठीक है। वो आपने होम असाइनमेंट जो आएगी इसकी उसमें आप लिखेंगे, और नेक्स्ट वीक का जो यही सेम असाइनमेंट होंगी नेक्स्ट, वो पहले लोड हो जाएंगी और आपने उनको पहले से देख के रखना है। तो लेक्चर वाले दिन हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा उसकी मैं पहले ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा ये वाली पीपीटी प्रेजेंटेशंस, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपकी प्रॉब्लम्स और इसको दोबारा से फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। अब मीटिंग का टाइम एंड हुआ है, तो आप नेक्स्ट अपना जो आपकी क्लास है, अब अभी शायद ये आप चेक करें गूगल क्लासरूम में ये लोग हो गया होगा, और अपना कॉपी वर्क जो आज आप स्टार्ट करें। अल्लाह हाफिज बेटे। अल्लाह हाफिज़।